बाद कहां थे, इनका सोच का हम तारीफ कर रहे हैं। जो इलेक्शन का पहले वो अपना सब कुछ खोते हुए लुटाते हुए तृणमूल में आए हैं, इस उम्मीद पे आए हैं कि ये सिंह जो जा रहा है ये कभी नहीं आएगा, आने वाले दिन में तृणमूल ही रहेगा, तृणमूल ही रहेगा, तृणमूल ही रहेगा। और हम लोगों को क्या देंगे, इनको एक ऐसा गीत देना है उठा के 65 बार के हम लोग जितने टीम है हम लोग सब उठा के इनको देंगे। जैसा हमारे इंडियन साहब का इलेक्शन में जो हाईएस्ट वोट था, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे कलकत्ता साहब में जितना अपनी सीट है सबसे ज्यादा वोट देंगे, हम लोग कामयाब बनाएंगे। जो आपके सामने है बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, ये लोग का एगेंस्ट में हम लोग को लड़ना है। ये लोग को आसान से मत दीजिए, क्योंकि एक वोट इतना कीमती होता है, एक वोट हम जाने नहीं देंगे। आने वाला जो इलेक्शन है वो सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी, उनका मकसद है कि बार हिंदू मुसलमान में लड़ाओ। इन हमारे ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर चलने वाली है। हिंदुस्तान में इतिहास होगा इस बार। आप देखिए वो कभी बैठने वाली नहीं है, कभी थकने वाली नहीं है, हमेशा करने वाली है ममता बनर्जी। गिरगित दुश्मन ध्यान से बीजेपी बहुत हिंदू मुसलमान करता है, बहुत हिंदू मुसलमान। ये बंगाल के ना हिंदू बटने वाला ना मुसलमान बटने वाला है, सब एक ही कश्ती में चलने वाला है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम जब आप सब हमारे संग है। बीजेपी को मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जितनी बाजू उतने सर, गिरगित दुश्मन ध्यान से हारेगा तू हाँ पार्टी, जब खेले हम भी जान से, हमें खेलना है उसी जान से। एक नया इतिहास करना है, नया इतिहास। मैं क्या बोलूंगा, बहुत बोलने वाले हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई। दादा এসে গেছে, দাদাকে ছাড়তে হবে। আমার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাদাকে বরণ করে দেবেন আমাদের ব্লকের অন্যতম সিনিয়র লিডার রাজা ভাইকে বরণ করবে, দাদাকে বরণ করে নেবেন। উত্তরীয় করি দাদাকে বরণ করবেন। এত লোক, যত লোক হলে আছেন, আমি নিজে এক্ষুনি ঢুকলাম, তার থেকে বেশি লোক হলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অভূতপূর্ব, মানে এত মানুষ নিয়ে কর্মী সভা, আমি অনেকগুলো কর্মী সভা করেছি, কিন্তু এত মানুষ আমি কোথাও দেখিনি। আমি 65 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সকল নেতৃবৃন্দ, সভাপতি সহ সকল নেতৃবৃন্দকে আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা এত মানুষ এখানে আসার জন্য। দেখুন, এই নির্বাচনে 65 নম্বর ওয়ার্ডের কি ফলাফল হবে, রেজাল্ট কি হবে, এগুলো সবাই জানকারি আছে, সবাই জানেন কি হবে ফলাফল। এটা আমাদের যতগুলো কলকাতা শহরে সেফ সিট আছে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসে আমরা যাকেই দাঁড় করাবো জিতবে, এই যতগুলো সিট তার মধ্যে 65 নম্বর একটা অন্যতম। আমাদের দলের প্রার্থী নিবেদিতা শর্মা গত 5 বছর তিনি এখানে কাজ করেছেন, এটা আমাদের একটা বাড়তি সুবিধা। মানুষের কাছে আমরা বলতে পারি যে আমাদের প্রার্থী গত 5 বছরে এই অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনে এই কাজ করতে পেরেছেন। এখানে আজকের সভা যিনি সভাপতি, 65 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রাক্তন পৌর প্রতিনিধি মাখনলাল দাস আছেন, প্রার্থী নিজে নিবেদিতা শর্মা, রাজা ভাই, আজহার আছেন, সুশীল শর্মা আছেন। আমাদের গোড়ার কথাটা আমি এই করতে বললাম, একটা সময় ছিল যখন আমরা প্রার্থী 65 নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়ার জন্য আমাদের লোকে দরজায় দরজায় ঘুরতে হতো, কেউ প্রার্থী হতে চাইতেন না। তার কারণ এগুলো বামপন্থীদের দুর্গ ছিল। আমাদের
দলের প্রার্থীদের দাঁড়ালে সুনিশ্চিত করা যায়, সেইখানে যিনি সাহস করে প্রার্থী উঠিলেন তার নাম গোড়া এখানে উপস্থিত। যারা পুরনো ছেলে, যারা দেখুন, আমি বারবার বলি, দলের প্রতিদিন দল বেড়েছে, দলের সংগঠন বেড়েছে, অনেক মানুষ এসছে, কিন্তু একটা সময় ছিল যখন আমাদের 65 নম্বর ওয়ার্ডে সংগঠন এতটা মজবুত ছিল। তখন যারা বুক চিতি সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমতায় আসবেন কিনা, কোন ক্ষমতায় আসবেন এরা ভাবতেই পারতেন না। তারা গোড়া সেলিমটা কোনোদিন ভাবিনি তারা ক্ষমতায় আসতে পারবেন, তবু তারা দলটা করেছিলেন। আমি সেই সমস্ত পুরনো যারা চাঁদ কোথায় এসছে, চাঁদ মারা গেছিল, চাঁদ ছিল, গোড়া ছিল, সেলিম ছিল, একগুচ্ছ মানুষ যারা ছিলেন, যারা সেদিনকে কখনো ভাবেননি দল ক্ষমতায় আসবে, তারা তবু দলের পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। আমি তাদের সকলকে সেলাম জানাই। 65 নম্বর ওয়ার্ডে নিবেদিতা শর্মা প্রার্থী, আমাদের দল মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদিতা শর্মাকে এখানে প্রার্থী করেছে। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে দল নেত্রী যাকে প্রার্থী করেছেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থী এই ওয়ার্ডে। তাই জন্য তাকে এমন সঙ্গে ঘুরে জেতাতে হবে যেটা মানুষ মনে রাখতে পারে। আমাদের সব 5 বছরের পুরো ভোট, 6 বছরের পুরো ভোট 65 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছে। কোভিড পরিস্থিতিতে যখন কোন রাজনৈতিক দলের কোন কর্মীকে রাস্তায় দেখা যায়নি, তখন আমাদের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে গিয়ে কোভিড যারা আক্রান্ত দলের পাশে দাঁড়িয়েছেন, হসপিটাল থেকে শুরু করে ওষুধপত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজ আমাদের দলের কর্মীরা করেছে। তাই আমাদের অধিকার আছে মানুষের কাছে গিয়ে সমর্থন চাওয়া, আশীর্বাদ চাওয়া। এখানে একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে, বিল্লাল এসছেন, আমাদের যেটা মাইনরিটি সেলের সভাপতি, বিল্লালকে এই মঞ্চে আসতে অনুরোধ করবো। तो उस वक्त पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहा था और इस 65 नंबर वार्ड से हम लोग तृणमूल के साथ मिल करके माला राय को कम बेश 17,000 वोट से दे दिया था। और इसके बाद दूसरा वोट जो आया बॉडीगंज असेंबली का, इस वक्त मगरबी बंगाल का सेकंड हाई वोट सुब्रतो मुखर्जी का रहा। और इसमें सबसे ज्यादा जो वार्ड इलेक्शन में वोट ज्यादा लीड किया है वो 65 नंबर वार्ड है। और इस 65 नंबर वार्ड को आपको हाई वोट से जिताना है। आपका मेहनत है, आप मेहनत कर रहे हैं, अपने इलाके में काम कर रहे हैं। आपको काम करने के लिए जो जो मदद की जरूरत है वो हमारे काउंसिलर और तृणमूल कांग्रेस से आपको मिल ही रहा है, वो तमाम मदद मिल रहा है। इलाका के काम हो रहा है, काम जोर शोर से हो रहा है। इस इलेक्शन के टाइम में भी काम हो रहा है, इसमें काम होता ही रहेगा। आप लोग बिना तकलीफ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए और एक होइए, हम तमाम लोग यूनाइटेड हो जाएं। बस इतने ही ध्यान रखिए, जो आपका लीडर है उसको आप लीडर समझिए, और मैं ये कहूँगा जो लीडर है वो अपने को वर्कर समझिए, बस काम हो जाएगी इंशाल्लाह। और रानी बेगम, हम आप लोगों को स्टेज पर बुला रहे हैं, आइए आप लोग अपने मोटिव जो है यहाँ रखिए। हम लोग यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप करीबन 15 साल से वर्क कर रहे हैं। पहले हमारे एक्स एमआईसी सुशील कुमार शर्मा के वक्त से हम लोग आए हुए हैं। आज तक हम लोग यहाँ 65 की लड़कियाँ बहुत डरती थी पार्टी में आने के लिए, वर्क करने के लिए, लेकिन आज इस 65 में इतनी लड़कियाँ निकली है सिर्फ सुशील शर्मा और निवेदिता शर्मा के वजह से। क्यों निकली है? क्योंकि उन्होंने काम कर दिखाया है। जो काम करेगा वो नाम करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग रात दिन दुआ करते हैं जो निवेदिता शर्मा हमारे वार्ड में हमेशा रहे,
जैसे हमारी दीदी बताई है कि ये 15 साल से चल रही है, दादा के टाइम से, और अब तो भी हमारे साथ है। तो ये बात सच है कि हम सब घर से निकलने में बहुत डरते थे। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हुए, ये सब दादा और दीदी का ही वजह से है। तो हम चाहते हैं और भी महिलाएं जो हैं, जो डरती हैं, निकल नहीं जाती हैं, वो भी निकले और हम लोग साथ मिलके हर घर से महिला को निकाल के उनके अपने पैर पर खड़ा करेंगे। बस यही बोलने थे, मैं अपना बातें ही खत्म करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम गुजारिश करेंगे हमारे ब्लॉक का ऐसी अंचल पर अस्सलाम वालेकुम। आज की जो महफिल आज यहाँ पर आए हुए तृणमूल कांग्रेस के सगाई और वर्कर्स और हमारी माँ बहनें और हमारे दोस्त, हमारे वर्कर्स तृणमूल कांग्रेस के पैसे रखे गए, मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मुल्क में बैठे हुए हैं हमारे इस हल्के के सदर मखनलाल दास, उनके बाद जो बैठी हुई है निवेदिता शर्मा, जो हमारे इस इलाके के काउंसलर की हैसियत के आपके सामने मौजूद है, और आने वाला कल इंशाअल्लाह वो फिर भी बढ़ेंगे। उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब बनाए, क्योंकि इस इलाके में निवेदिता शर्मा का बहुत सारा काम है। साथ में जो है जो 10 साल पहले 10 साल इस इलाके के काउंसलर है, वो है हमारे सुशील शर्मा साहब। तो सुशील शर्मा साहब का जो दान इस इलाके में हम जब जिम्मेदारी लेकर इस इलाके में काम कर रहे थे, हम अपने वोटर्स के पास जा रहे थे और कह रहे थे कि सुशील शर्मा को हराओ और हमारे लीडर को जिताओ। कि हमारे कुछ लोग हमसे कह रहे थे तो बोले भाई नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सुशील शर्मा का जो काम है उनको हम लोग परामर्श नहीं कर पाते हैं। सुशील शर्मा का जो काम है वो परामर्श नहीं कर पाते। वो शख्सियत आज हमारे साथ में है, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। आज इस तरह से जिन लोगों का ये कारनामा रहा है, हमारे ख्याल से हमारे जीतने के लिए कोई भी नहीं होगी, न परेशानियां होंगी, क्योंकि इस इलाके में एक बात मैं कह चुका हूँ, कह देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम इलाके में हम लोगों को इस साल टिकट क्यों नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आजादी के बाद ममता बनर्जी ने इस 65 घंटे में 4 बार मुसलमानों को टिकट दिया, ये बात आप लोग जान ले। 4 बार में पहली बार हमें टिकट दी थी ममता बनर्जी, दूसरी बार जावेद खान जो पार्टी के झटके से खड़े हुए थे, वे इसी इलाके से जीते थे। उसके बाद लुत्फानुर रहमान साहब को भी ममता बनर्जी ने टिकट दिया था, उसके बाद फरजाना आलम को भी दिया था। जिन लोगों का ये सवाल होता है, मैं उनसे कहूंगा कि मैं आज इस छोटी के जो पर मैं इस सभा में बोल रहा हूँ, अगर किसी के दिल में ये बात हो तो इस बात को निकाल दे। और ममता बनर्जी जो है, हम बदकिस्मत है जब ममता बनर्जी हिंदुस्तान का आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। उनकी शख्सियत के ये आलम है, उनको मैं शेर अर्ज करता हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। आज इसी के साथ मैं वक्त की कमी में बहुत सारे लीडरान है। अच्छा गोरा भाई से खड़े हुए स्टेज पे बैठे हैं हमारे बिलाल साहब, निवेदिता शर्मा साहब, मखनलाल दास साहब, गोरा भाई, और ये यहाँ पर सुगुल शर्मा साहब, अजहर भाई, चांद भाई, ये सब को जो नाम दिए मैंने दिया है, इस सब नाम आपके तारीफ का मुकाज नहीं है। आप लोग जानते हैं कि मैं 2 साल से बीमार था, अभी मैं ठीक हुआ हूँ, तो लेख बुलाए उनको क्या पाइए, मैं चला गया। एक बात बता दूं कि सुशीलता और निवेदिता शर्मा
ये दोनों किसी के मोहताज नहीं है, उनके मोहताज नहीं है। इसे आपका दिल जब आप वोट देने जाइएगा तो आपका दिल खुद ब खुद चाहेगा तो उसको खुशी करके उनको वोट दें। आपका वोट उनको खुद ब खुद पड़ेगा। ये बात सबको जान लें कि ये 65 नंबर वार्ड जो है इस इलाके का सबसे अजीज, सबसे प्यारे, सबसे कौंसलर जो मिल रहा है निमिता शर्मा, सुनीता शर्मा, हर जगह किसी बात की कोई जरूरत पड़े वहाँ मौजूद है। जैसे आपके घर में भी पहुँच जाते हैं, आपके बाद मौजूद है, ऐसा कौंसलर कहाँ मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कौंसलर अपना पर्सनलिटी दिखाता है, कहीं आता है कहीं नहीं जाता है, कहीं जाता है, लेकिन लोगों के पास में कोई पर्सनलिटी है कि लोगों के पास गौर से जाते हैं और उनका दुख सुनते हैं, उनका काम करते हैं। तो हम लोगों को ऐसे आदमी चाहिए ना भाई कौंसलर के लिए। तो इसको चाहिए कि क्या करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा वोट देना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हम ज़्यादा वोट देकर उनको जिताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएंगे, वादा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे, ऐसा वोट देंगे तो कैसे हम लोग याद रखें 65 वार्ड को। 65 वार्ड ऐसा वार्ड है जितना ज़्यादा वोट देकर तृणमूल से जिताएगा। दूसरी बात यह है कि रात की धड़कन जारी रहती है, रात की धड़कन जारी रहती है, सोते नहीं हम क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी रहती है। दोस्तों और साथियों और हमारे नौजवान साथियों, ये बात आप सभी को जहन में मैं डाल दूं कि तकरीबन 45 साल से 65 नंबर वार्ड में बाया महाज के काउंसलर छोड़ के किसी भी काउंसलर यहां पर जीता नहीं है। टिकट भी मिला था जब जीत के भी करीब थे, जब गोरा भाई एक जमाना में बहुत जीत के करीब थे, हार चुके थे। रुकबानुर रहमान भी बहुत जीत के करीब थे, हार चुके थे। फरजाना आलम भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से वो निमिता शर्मा जी से हारी हुई थी। लेकिन ये एक मौका मिला है हम लोगों को, और अभी तक जो दल में हमारे निमिता शर्मा जी जो शामिल हुए हैं, हम लोग के काउंसलर हम लोग को मिला है, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर नहीं मिला। ये बाया महाज के प्रतीक से जीत करके, उदान से जीत करके हम लोग के दल बदल करके हम लोग के यहाँ शामिल हुई थी। इसीलिए अभी जो काउंसलर जीतने वाली है, हम सब के कड़े मेहनत करने के बाद वो इतिहास में पहली बार होगा कि 65 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस की काउंसलर जीतेगी, वो निमिता शर्मा जी। ये हिस्ट्री होगा और तभी हम तमाम जितना तृणमूल कारकुल है एक कांधा से कांधा मिला करके एक ही अंडर वन लीडरशिप के अंडर में 8/2 पार्लियामेंट के लीडरशिप में 65 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप में माखनलाल दास का, सुशील शर्मा, निमिता शर्मा की लीडरशिप में एक साथ एकजुट होकर के कांधा कांधा मिला करके हम लोग सब मिल करके निमिता शर्मा को 30,000 वोट से 65 नंबर वोट से जिताएंगे। ये जो प्रेसिडेंट है वार्ड के, वो आप लोग को निर्देश देंगे कैसा किया जाएगा, काम कैसा होगा। ये इलेक्शन का माध्यम में जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगा, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग अपना जिम्मेदारी नहीं उठाए, क्योंकि आपस में तंज ना करके, झगड़ा नहीं करके आप लोग अपना अपना काम में अंजाम दें और हमारे निमिता शर्मा जो कैंडिडेट है उसको जिता कर लाकर उनको एक मुकाम पर पहुंचाए। यही बात को तो मैंने खत्म कर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मंच में हमारे सभी नेता को हमारा सलाम आदाब। हमारे नाम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, किसी न किसी का नाम मिस हो जाएगा और वक्त नहीं है। हम लोग आज जिस चीज की आए हैं, कर्मी मीटिंग इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर कि हम लोग कैसे मिलकर सब एक साथ होकर कैसे निमिता शर्मा के लिए वोट कराना है, ये मेन है। हम लोग को सोचना है, पीसफुली वोट कराना है, लोग के पास जाना है, लोग को उतारना है, लोग को वोट कराना है। हमारे यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट मातंदा है, निमिता शर्मा है,
सुशील दा है, बिलाल भाई है, राजा भाई हैं, और भी जो सीनियर लीडर्स हैं, इन लोग का जो गाइडेंस हम लोग को मिलेगा, हम सबसे यहाँ पर कर्मी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना आइडिया ना लगाएं। जो हमको ये गाइडेंस देंगे, हमको उसको लेकर ही चलना है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना कि किस तरह काम करना है। जो हमारे सीनियर लीडर लोग गाइडेंस देंगे हम लोग को इलेक्शन में, हमको उसी को लेकर करना है। रहा निविदा शर्मा के बारे में क्या बोलना, वो ऐसा काम करते चले आ रही है हमारे बीच में 65 नंबर वार्ड में कि गर्व होता है कि हम उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ उनके कांधा पे कांधा मिलाकर करता है। निविदा शर्मा के लिए एक शेर हम बोलते हैं, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। यही है निविदा शर्मा, यही है निविदा शर्मा कि आप लोग सब पहचानते हो, उनका काम पहचानता है। आज माखनदा को सब काम से पहचानते हैं, आज बिलाल भाई को काम से पहचानते हैं, नाम से नहीं पहचानते हैं। नाम आपका है, लेकिन अगर आप काम कीजिएगा तो ही आपको पहचानेंगे। बस आप से रिक्वेस्ट है, इस जीत को बड़ा जीत बनाना है, बहुत बड़ा जीत बनाना है। इतना बड़ा जीत कि जैसा देवादा भी बोल चुके हैं, माता भी बोल चुके हैं, सभी भी बोल चुके हैं कि इतिहास आज 144 वार्ड नंबर में अगर नंबर हो एटलीस्ट परसेंटेज में फर्स्ट नंबर 65 नंबर वार्ड का होने चाहिए। यही सबसे रिक्वेस्ट है। जाते जाते एक शेर और बोलते हो, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐप नहीं है, ऐसा नहीं मुझ में कोई ऐप नहीं है, पर इतना आपको सबको बता दूं, मुझ में कोई फरेब नहीं है। थैंक यू। दिवाली का चाणक्य और समाजसेवी राजा भाई और 65 नंबर का तेंदुलकर सुशील दा, यदि तीनों एक हो जाए तो कोई माय के अलावा के हिम्मत नहीं उठा सकता है तो हरा नहीं सकता है। शुक्रिया माखनलाल दास, जो हमारे इस इलाके के इस 65 नंबर वार्ड के एक जिम्मेदार और तृणमूल कांग्रेस के काबिल नेता और लीडर हैं, और इन्होंने साबित किया है कि ये काबिल नेता और लीडर हैं। ऐसे नेता और ऐसे लीडरों के ऊपर इनकी काबिलियत को देखकर जो लोग तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं फख्र महसूस होता है कि हम लोग ऐसे नेता और ऐसे लीडर के साथ या ऐसे नेता और ऐसे लीडर के अंडर में काम करते हैं। मैं इस मंच पर मौजूद निवेदिता शर्मा, जो आपके इस इलाके की कैंडिडेट है, राजा भाई हैं, उस्मान भाई हैं, सुशील कुमार शर्मा है, अजहर भाई हैं, सलीम भाई हैं, आसिफ को भी आप सुन रहे थे, आबिद भाई हैं, गोरा भाई हैं, बैठे हुए हम लोग के बहुत पुराने ममता बनर्जी के एक और साथी हैं गोनोदा, ये भी मौजूद थे हमारे इस मंच पर, और भी हमारे बहुत से लीडर बैठे हुए हम लोग के, सलीम भाई के छोटी मोटी हम लोगों के दीदी की बहुत, हम लोगों की दीदी के घर में अगर कभी भी जाएंगे आपको छोटी और बड़ी जरूर वहां पर मिलेगी। जोरदार ताली। छोटी में बहुत पुरानी हम लोगों की दीदी की बहुत पुरानी ये साथी रही है शुरू से, छोटी मोटी आपने इस वार्ड में रखी है। हम लोगों के यूथ के यहाँ पे नेता है तो प्रेसिडेंट सलीम भाई के साहबजादे, सलीम भाई भी अभी भी यंग है, ऐसा बात नहीं है, उम्र ज्यादा हो गया है। कार्ड में इनके शायद जो है आधा ये वोटर कार्ड में उम्र कम लिखा गया था, इसीलिए बहुत दिन तक ये यूथ के यहाँ पे नेता बने रहेंगे। उनके काले बाल और काले मोल को मत चलेगा, क्योंकि हम लोग के लीडर है यहाँ पे। और सुशील कुमार शर्मा, मैंने सुब्रतो मुखर्जी से उनके ऑफिस में दफ्तर में बैठे हुए थे, हमने उनसे पूछा कि दादा एक बात बताइए, आज वो हमारे बीच नहीं है, बड़े अफसोस की बात है, उनकी कमी महसूस होती है। हमने उनसे पूछा कि हम लोग लोकसभा इलेक्शन में 65 से जीत जाते हैं,
विधानसभा इलेक्शन होता है 265 में हम लोगों को लीड मिलता है, वही नेता है, वही कर्मी है, वही वर्कर है, वही बूथ है, वही बूथ एजेंट है। क्या वजह है कि 65 में जब काउंसिलर का इलेक्शन होता है तो तृणमूल कांग्रेस हार जाता है। अब यकीन मानिए, सुब्रत मुखर्जी ने मुझे जवाब दिया, तो पूछते पारिस ना सुशील शर्मा डायरेक्टर, ये जो वर्ड है, ये कैरेक्टर, ये पूरा अपने आप में एक स्टेटमेंट है, एक किताब है। इंसान की जिंदगी के ऊपर आप एक किताब लिख सकते हैं अगर आप उसके कैरेक्टर को जानते हैं। तो एक ऐसे कैरेक्टर का इंसान जिसके कैरेक्टर की वजह से तृणमूल कांग्रेस यहाँ हारता रहा और उसके कैरेक्टर की वजह से तृणमूल कांग्रेस में हुआ है और इंशाल्लाह इस बार यहाँ पे चीफ इस इलाके की है। शौक सफर का एक अरसे से यारों मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। बहुत बहुत शुक्रिया। আমি প্রথমেই তার আগে একটা কথা মাথায় অনুমতি নিয়ে বলতে চাই, আজকে 6 ডিসেম্বর, আজকে বাবা সাহেব আম্বেদকরের মৃত্যুদিন। আজকে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে যদি 1 মিনিট নীরবতা পালন করে তার প্রতি সুশীলদা দারুণ প্রস্তাব। আমি একটু বলি নির্ভর করবো, আজকে আমাদের পার্টি সংহতি দিবস পালন করেছে। আজকে সকালবেলায় প্রথমেই রেড রোডে গান্ধী মূর্তির কাছে আমাদের দলের পক্ষ থেকে সংহতি দিবস পালন করা হয়েছে। আমরা জানি আজকে বাবরি মসজিদ শহীদ হয়েছিল আজকের দিন, আজকে সৌহার্দ্যের দিন, সেটা আমরা পালন করেছি। তার সঙ্গে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের আজকে হচ্ছে পরিনির্মাণ দিবস বলি, আমরা মৃত্যু দিবস বলি না, এটা পরিনির্মাণ দিবস। সেই সঙ্গে আমরা বাবা সাহেব আম্বেদকরকে যেমন স্মরণ করছি, আমরা আজকে সংহতি দিবস, ভ্রাতৃত্ববোধকে আমরা স্মরণ করছি, সংহতি দিবস পালন করছি। বিবেককামী সাম্প্রদায়িক ফিরকাপরাজ তাকাত তাদের যে চক্রান্ত, সেটাকে আমরা ঘৃণা জানাচ্ছি এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে তারা বিতাড়িত। আগামী নির্বাচনে কলকাতাতেও যেন একটাও বিজেপি ঝান্ডা না থাকে আমাদের জন্য দেখতে হয়, সেটাও আমরা কামনা করছি। পাশাপাশি আজকের দিন আমরা স্মরণ করছি, যদিও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা ইতিমধ্যে স্মরণ সভা করেছি আমাদের প্রিয় বিধায়ক সুব্রত মুখার্জির পক্ষে, তাকে স্মরণ করে আমরা ইতিমধ্যে স্মরণ সভা করেছি। আমাদের যা করণীয় কর্তব্য সেটা আমরা পালন করেছি। আজকের দিনে সকলটাকে মাথায় রেখে আম্বেদকর সাহেব পরিনির্বাণ দিবস, আজকে সংহতি দিবস, তার সঙ্গে আমাদের প্রিয় বিধায়ক সুব্রত মুখার্জি, তার সঙ্গে আমাদের আবেগ জড়িয়ে সে আমায় একটা পরিচয় দিয়েছিল, আমাকে চিফ ইলেকশন এজেন্ট করে বালিগঞ্জে নির্বাচন করেছিলাম। সুব্রত নিজেও জানতে না ইলেকশনটা কিভাবে কি হয়েছে না হয়েছে। তো তারও বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনের প্রতি, তার বর্ণময় কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুশীলদার কথা মতন আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করছি। থ্যাংক ইউ। এখন সুশীলদাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য প্রিয় বন্ধুরা, বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজকে প্রথম আমার সেই আবেগ স্পর্শ করে যাচ্ছে। এখন বলেছে সুন্দরতা আজকে আমাদের মধ্যে নেই। আজকে এই দিনে যার সভা আলোচনা থাকার কথা, যার হাত ধরে আমারও আশা
আমাদের সহকর্মীর আশা সেটা আমাদের আজকে সেই আবেগ আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। সত্যি মানুষ তো অমর নয়, জন্মিলে মরতেই হয়, কিন্তু কিছু কিছু মানুষ তাদের কাজের জন্য ছাপ রেখে দেয়। সুন্দররা আমাদের মধ্যে সেই ছাপ রেখে গেছে। আগামী 19শে ডিসেম্বর পুর নির্বাচন, অনেকেই মনে করছেন, সবাই আমরা আশাবাদী যে বিরাট ভোটে যাবে, আমিও আশাবাদী আপনাদের মতো। কিন্তু একটা কথা বিনীতভাবে বলছি, কোন নির্বাচন একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ, একটি নির্বাচন একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। তো সুতরাং কোন সংগ্রামকেই ছোট করে দেখবেন না। আমার বন্ধু আছে মাঝে, জাভেদ ভাই আপনি একটু আসুন না মঞ্চে প্লিজ। আমার রাজনৈতিক সংগ্রাম, সেই সংগ্রামকে দয়া করে আমার ভাই বোনেরা ছোট করে দেখবেন না। আমার যারা শ্রদ্ধেয় গুরুজন তারাও পরামর্শ দেন, কোন সংগ্রামকে ছোট করে দেখবেন না। যা যা করার তার জন্য মানুষের কাছে যেতে হবে। একটা কথা মনে রাখেন যে আমিও বিশ্বাস করি যে আপনি তো জানেন আমি দীর্ঘদিন যে রাজনীতির সঙ্গে ছিলাম, একটা কথাই বিশ্বাস করতাম, মানুষ কোনদিন আপনাকে পরিত্যাগ করবে না যদি আপনি মানুষের কাছে যান। আমি কেন ছাড়লাম, নিবেদিতা কেন আসলো? একটা জিনিস মানে একটা সময় এলো যখন পুঁথি মানে আদর্শগত লড়াইয়ে এই সিম্পোজিয়াম করা, আপনার কোন পত্রিকা প্রকাশ করা, কোন মানে সিঙ্গারা বা সন্দেশকে কোন রাজনৈতিক সভা করা, নিন্দা করা, এগুলো। আর একদিকে আসলো পথ, যে পথ মমতা দেখিয়েছেন যে মানুষকে সংগঠিত করে মানুষের স্বার্থের জন্য সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। আমি পুঁথি আর পথের মধ্যে পথকে বেছে নিয়েছি, মমতার সেই প্রধান পথে সহকর্মী ভাই বন্ধুরা, আগামী 19 তারিখ ভোট, আর মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল নেতৃত্ব আমাকে 65 নম্বর ওয়ার্ডে মনোনীত করার জন্য আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের নির্বাচন সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে, পেপার শুরু হয়েছে, তারপর আপনাদের প্রচার করছি, তাই আমাদের কর্মী সবাই ডাকা হয়েছে। সুতরাং আপনারা যা অনেক ভোট করেছেন, জানেন কিভাবে ভোট করতে হয়। অনুরোধ आस्ते आस्ते बात मत की करो। क्या बोल रही है अब तो सुनिए, 2 मिनट अब आपस से बात कर रही है, उनका बात कैसे सुनिए? 2 मिनट सुन लीजिए उनका बात कम से कम। আমাদের কর্মী সভা আয়োজন করা হয়েছে, এখানে নির্বাচনী কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং দেয়ালের কাজ শুরু হয়েছে, ডোর টু ডোর প্রচার করছি আমরা। এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচনী কাজ কর্মসূচি অনুযায়ী শেষ করবেন। এবং সেই সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সুরক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং যা কলকাতা পুরসভার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং অবশ্যই আপনাদের সহায়তায়। কলকাতা পুরসভার অনেক রকম সুবিধা আমরা আপনাদের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছি। তারপরে ভোটের পরেও শুরু হবে দুয়ারে রেশন, সেটাও আপনারা পাবেন। আমি আগে একজন পরিবার সদস্য ছিলাম এবং সেই পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতাম। এখন আমার কাছে 65 নম্বর একটা আমার বৃহত্তর পরিবার, সেই পরিবারের সদস্য আপনারা। আপনাদের সামাজিক সুরক্ষা কর্তব্য আমার। তাই আজ আমার কাছে ঘর হলো বাহির আর বাহির হলো ঘর। প্রার্থীকে আপনারা বিপুল ভোটে জয়ী করবেন, জয়ী করবেন, মমতা ব্যানার্জির হাত শক্ত করবেন। সেই জয়ের আনন্দ আমরা সব একসঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। নমস্কার। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, দেবাশিস কুমার জিন্দাবাদ।
মাননীয় সভাপতির অনুমতি নিয়ে ইরফান আলীকে আমি আমার ইলেকশনে পালন করি। আর একটা मुझे इतना ज्यादा बोलना नहीं आता है, मैं बैकड्रॉप पे काम करता हूँ। ऐसे ही काम करना पसंद करता हूँ, लेकिन आज एक फ्रंट पे काम करने का मौका मिला है। इंशाल्लाह इसको अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा और आप सबका साथ चाहिए मुझे इसमें। मैं अपनी खुशी निभाऊंगा। Thank you.